You can please put up. Milk is fortified. Yes. What about the packet milk then? Is it also fortified with vitamin A? See, vitamin A is present in malai, as I told you, in the cream, in fresh cream. Whether it is any milk, Amul milk or any other milk. So you cannot mix the cream and give it to the child. But the token milk is, the cream is not taken out of the milk and it is mixed into that. When you take token milk, you will see the consistency is thick compared to the other milk, because it comes in 4 degrees temperature controlled from in the tankers, and it comes in the booth in that same controlled temperature. Any other question? अगर आप में से कोई डाइट के बारे Yes. Ma'am, should we add Horlicks or other supplement to the milk every time? Yes, you can add cornflakes. I mean, you can always add Horlicks, Bonvita, whatever. That does not lessen the nutrition value in the milk. Every time we can put. Yes, you can. There is no issues about it. How much quantity of milk should be given? Sorry? How much quantity of milk should be given to a child? How old is the child? 6 years old. Sorry? 6 years. 6 years. 6 years. She should have at least 1 kg of milk Per day. per day. And as the age grows, then As the age grows, of course, you can increase the quantity of milk. But हम जैसे एक steel का glass, 1 glass in the morning, 1 in the day, and 1 in the evening, in the night, should be taken. and what about the elders, ma'am? Elders should be, of course, be taking more than 1 kg, 1.5 kgs. Right. Regarding their diet, आपके पास diet chart है ना सबके पास? अगर कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा या you need to ask, you can ask. If they need to be asking personally, I can be seating there and they can ask. Fine. If you want to put any questions, she's here and you can just go and talk to her personally. Thank you, ma'am. Thank you. Children independent. I take the privilege to announce the panelists to you. Dr. Gitanjali Kumar. I request the panelists to be seated on the dais, please. Dr. Gitanjali Kumar, Dr. Naveen Grover, and Ms. Shalu Yadav. I request our panelists to move to the dais. For Life Skills Education Program, I request Ms. Sunita Batra, Coordinator Primary, SD Public School, to welcome Dr. Gitanjali Kumar. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome our esteemed guests. Behavior and Allied Sciences. He has guided many research projects studying interaction between mental health and students, and he is still working on projects on the same lines. I invite Mr. Monga to be on the stage. Our next panelist is Ms. Shalu Yadav. She is a counselor, SD Public School, Pitampura. I call upon the parent, Mr. Monga, to please facilitate Dr. Grover on the stage, please, with a shawl. Welcome him, please, sir.
Let us all put our hands together for our guests. And I request Ms. Gayatri Bhasin, coordinator, has been a registered professional with the RCI. She has many awards to her credit also. Ladies and gentlemen and children, let us all put our hands together once again to greet them. Everybody, please applaud loudly for all of them. Thank you. And now I Dr. Gitanjali Kumar to start with the discussion. Say a few words about स्कूल की मुख्य अध्यापिका अनीता जी, वाधवा साहब, उषा मैडम और सारे पेरेंट्स जो यहाँ बैठे हैं। सर्दी का संडे हो और हम सब सुबह तैयार होके समय के साथ यहाँ पहुँच गए हैं, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है कि हम अपने गरम बिस्तर और गरम प्याला चाय का छोड़कर यहाँ पर अपने बच्चों के लिए आए हैं। आई थिंक दैट ऑल confirms to the point that as parents and responsible adults हमें अपने बच्चों की चिंता है, हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और ये पूरा आयोजन जो एसडी पब्लिक स्कूल ने यहाँ किया है इन कोलैबोरेशन विद मदर डेयरी, कहीं ना कहीं इसी बात की ओर केंद्रित कर रहा है दैट आवर चिल्ड्रन आर वेरी प्रेशियस टू अस। मुझसे कहा गया है कि मैं कुछ बोलूं, मुझसे कहा गया था कि एक डिस्कशन होगी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। जो आपके मन में है, जो आपके सवाल हैं, वो अभी मैं नहीं जानती, लेकिन जब बच्चों की बात होती है तो सिर्फ एज अ पेरेंट, एक माँ के तौर पर मैं बात करना चाहूँगी। नॉट जो मैंने पढ़ा, नॉट जो मैंने सीखा, लेकिन जो मैंने महसूस किया। मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहती हूँ, मैं 20 साल की पेरेंट हूँ। मेरा बेटा 20 साल का हो गया है। इन 20 सालों में मैं 20 साल बड़ी हो गई, बहुत कुछ सीखा उससे। और ऐसा लगता है कि बच्चों को शायद 3 ही चीज़ों की ज़रूरत है, और वो 3 चीज़ें क्या हैं? कोई भी उम्र का बच्चा हो, 3 साल का, 13 साल का या 23 साल का, सिर्फ 3 ही चीज़ें चाहते हैं। अटेंशन, लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ अफेक्शन एंड लॉट ऑफ एफर्मेशन। अटेंशन कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है। जब छोटा है तो हम अटेंशन देते हैं, वज़न बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, बैठ रहा है या नहीं बैठ पाया, दांत निकल आया है या नहीं निकला है, बोलेगा कब। हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अटेंड करते हैं जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं। जब उससे बड़े हो जाते हैं, अब ये ब्रश करना सीख जाए, इस चीज़ की अटेंशन देते हैं। ये चीज़ों को पकड़ता कैसे है, ये इसकी चाल कैसे है, फ्लैट फुट तो नहीं है, क्रॉल कर नहीं किया, दौड़ेगा, ये सब चीज़ों पे हम अटेंशन देते हैं। फिर प्ले स्कूल की उम्र आ जाती है, अटेंशन जाती है। हमारे आसपास के प्ले स्कूल्स कैसे हैं, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, टीचर कैसी होगी, स्कूल में क्या होगा। और फिर बारी आ जाती है एसडी पब्लिक स्कूल जैसे स्कूलों की कि यहाँ स्कूल्स बढ़िया कौन से हैं। आसपास बहुत सारे स्कूल दिख रहे हैं, प्ले स्कूल वाले कुछ और स्कूल बता रहे हैं। फिर आप अटेंशन देते हैं स्कूल की डेलिकेसीज को जानने के लिए कि स्कूल का चुनाव करना है। मतलब हर दौर में, हर उम्र के बच्चे को भरपूर मात्रा में अटेंशन चाहिए। अटेंशन के साथ साथ बच्चे को प्यार चाहिए, जिसको हम अफेक्शन कहते हैं। प्यार दुलार ये नहीं कहता कि जो बच्चा कहता जाए हम मानते चले जाएं। अफेक्शन का मायना यही है कि आप किस तरीके से एक बैलेंस लाते हैं अपनी पेरेंटिंग में। आप जानते हैं कि बच्चे के लिए ये चीज़ ठीक नहीं होगी, लेकिन वो जिद कर रहा है तो हम हाँ कर दें, ये गलत होगा। अफेक्शन का मतलब ये है कि कब आपको दुलारना है, कब फटकारना है, इस चीज़ का ज्ञान हर माँ बाप को होना चाहिए। That is the right meaning of affection which the child would require at any age.
जब ये बड़े हो रहे होते हैं तो हम इन्हें एक दायरे में बांधना शुरू करते हैं। दायरा जरूरी है। अगर एक पेड़ भी बेहिसाब बड़ा हो जाता है तो सर्दियों में उसकी छटाई कर दी जाती है, क्योंकि रोशनी रुकती है, धूप रुकती है। और ये बच्चे तो हमारे अपने वजूद का हिस्सा है। हम उन्हें इस तरह की बेतरतीब ग्रोथ अफोर्ड नहीं कर सकते। सो एज पेरेंट्स who believe in these 3 A's of attention, affection and affirmation, हमें अपने बच्चों को प्यार से बड़ा करना है, लेकिन प्यार के साथ साथ फटकार भी जरूरी हो जाएगी, एक दायरे में बांधना जरूरी हो जाएगा। आपके घर के नियम, स्कूल का भी नियम होते हैं, घर के भी नियम होते हैं। कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ बिहेवियर्स अनएक्सेप्टेबल होंगे। वो बिहेवियर्स अनएक्सेप्टेबल क्यों होंगे? जोर से ऊंची आवाज़ में बोलना, गलत तरीके से बोलना, या हमारे घर में रोज़ सुबह हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, भगवान के आगे जोत जलाते हैं। जो भी आपके घर के नियम हैं, उन नियमों से बच्चों को बांधना ज़रूरी है। ये अफेक्शन का हिस्सा बन जाता है। अफेक्शन का हिस्सा रोल मॉडलिंग भी आ जाती है कि हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि हम उन्हें अच्छा बनाना चाहते हैं। अच्छा बनाने के लिए पहले हम खुद अच्छा बनेंगे। हम आपस में कितनी प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हैं, बच्चा वहाँ से सीखता है एक पोलाइटनेस, एक मधुरता। अगर हम एज अ मदर दादी से मधुरता से नहीं बात कर रहे, दादी का काम माथे पे त्योड़ी ला के कर रहे हैं, तो बच्चा बड़ों की, अभिभावकों की इज्जत करना, सम्मान करना नहीं सीख पाएगा। हाँ, बच्चे तो उस आईने की तरह रहते हैं कि उस आईने में जो सही छवि है वही नजर आती है। एज अफेक्शनेट पेरेंट्स इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने बच्चों के सामने सही आचरण का उदाहरण दें। फिर तीसरी बात आ जाती है एफर्मेशन की। बच्चा हमसे एक्सेप्टेबिलिटी चाहता है, बच्चा हमसे एक पॉजिटिविटी चाहता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो गिर गिर कर चलना सीखते हैं। वो गिरते हैं तो आप उनके आंसू पोंछते हैं, आप उन्हें गले से लगाते हैं और फिर से विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार चलो, अब की बार नहीं गिरोगे, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। यही वो विश्वास है जो एक छोटे बच्चा, जब आप उसको गोदी में उठा के उछालते हैं तो वो किलकारी मारता हुआ आपकी गोदी में आ जाता है, आपके हाथों में आ जाता है, क्योंकि उस बच्चे को विश्वास होता है। वो 6 महीने के बच्चे को 3 साल के बच्चे में डर आने लग जाता है, और 6 साल के बच्चे में ये डर इतना ज़्यादा आ जाता है कि आप उसे उछाल के देखिए, वो चीख के चिल्ला पड़ता है। क्योंकि बच्चों को ये विश्वास पेरेंट से बार बार मिलना ज़रूरी है कि तुम जैसे भी हो, जो भी हो, मेरे हो। आई वुड लव यू द मोस्ट, आई स्टिल लव यू टुडे। आज जो आपने कुछ कर दिया वो गलत है। वो गलत क्यों है? वो गलत इस वजह से है, लेकिन फिर भी आप मुझे बहुत प्यारे हैं। हमारी किताबें इसे अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का नाम देती हैं। बहुत मुश्किल है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस बच्चे को देना। जब वो A+ लेके आता है तो दौड़ा चला आता है, बैग से कॉपी आपके बिना कहे निकाल कर वो नोटबुक आपको दिखाता है। जिस दिन 5 आउट ऑफ 10 आते हैं तो उसकी नज़र नहीं मिलती आपसे। कहीं ना कहीं ये दुख और रिमोर्स ज़रूरी भी है, बट ये तकलीफ डर का नाम अगर ले लेता है तो वो बच्चा फिर चीज़ों को छुपाने लग जाता है। वो बच्चा कतराता है माँ बाप से, वो बच्चा स्कूल में झूठ बोलेगा, घर में झूठ बोलेगा। एज पेरेंट्स वी हैव टू give this confidence, instill this confidence in our children that with a A+ I love you, with a C also I love you. Let's get together and work upon your C so that your C next time becomes a B or a A. हर बार बच्चा जीत नहीं सकता जिंदगी में। हमेशा फर्स्ट आएगा
ऐसा पाठ भी नहीं हम पढ़ाना चाहते, लेकिन ये विश्वास तो उसे दे सकते हैं कि किसी भी हालात में कैसा भी कोई भी चैलेंज आए, ट्राई एंड डू योर बेस्ट, बी योर बेस्ट, अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल्स के तौर पे काम करो, जितनी तुम में कैपेसिटी है उसके अनुसार काम करना, ऐसा उत्साह बच्चे को देना एफर्मेशन कहलाएगा। और एफर्मेशन में आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बच्चों को एक्सेप्ट कीजिए वो जैसे हैं। एक जो कारपेंटर है वो पॉलिश करता है आपके फर्नीचर को, जब वो पॉलिश करता है फर्नीचर को तो वो पॉलिश की रगड़ाई उस ग्रेन के अकॉर्डेंस में करता है। जैसा आपकी प्लाई का या लकड़ी का पैटर्न होता है वो उसके अनुसार पॉलिश करता है, नॉट अगेंस्ट दैट। तो अगर मेरे बच्चे में काबिलियत अंग्रेजी की है और मैथमेटिक्स की नहीं, सॉरी अनीता जी आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है बट मैंने यूं ही कह दिया, या मैथमेटिक्स का ट्रेट है और अंग्रेजी का नहीं, और मैं कहती हूँ कि मुझे तो अंग्रेजी बहुत पसंद है, मैं तो इसको इंग्लिश ऑनर्स करवाना चाहती हूँ, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। जो बच्चा जैसा बीज लेके आया है वो वैसा ही फल देगा। और एफर्मेटिव पेरेंटिंग यही होगी कि आप अपने बच्चों के गुणों को पहचानिए, उनकी कैपेसिटीज, उनकी टैलेंट्स और कहीं ना कहीं उनकी इनएबिलिटी को पहचानते हुए उन्हें वैसा ही पाथ आगे के लिए, फ्यूचर के लिए लेने के लिए इनकरेज कीजिए। जहां आपको मदद की ज़रूरत है वहाँ मदद लीजिए। स्कूल्स में टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, स्कूल्स में भी काउंसलर्स हैं, बाहर भी अवेलेबल हैं। आजकल ऑप्शंस की कमी कहीं पर भी नहीं है। बच्चों के अंदर डेडिकेशन, हार्डवर्क, मेहनत करने की, परिश्रम करने की इच्छा को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और एज पेरेंट्स अगर हम अपने आचरण में ये चीज़ें ला पाएंगे तो हमारे बच्चे भरपूर तरीके से बड़े हो सकेंगे और हमें अपनी पेरेंटिंग पर नाज होगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। एक छोटी सी कहानी जो मैंने इंटरनेट पे